गुरु साहिब जियो। राग आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साईं। जो तो भावै सोई थिसी। जो तू दे सोई हों पाई। रहाऊ सब तेरी तू सबनी ते आया। जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया। तुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माही। तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होय। तुध बिन दूजा अवर न कोय। तू कर कर वेखें जान सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। तू कर कर वेखें जाने सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन दरबार दे अंदर शुभाईमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, धन धन श्री गुरु रामदास साहब सतगुरु पातशाह जी का यह पावन शब्द आपने सरवण किया है जी। सोदर बाणी के अधीन अज असीं इसकी विचार करनी है। तो आरंभता जिहड़ी है पावन शब्द की वो रहाओ दे बंद तो ही हुंदी है। तू करता सचियार मैंडा साईं। जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई। तो ये नासकी उच्चारण करना है इस शब्दों का। जो तू देह इनू भी देह बोलना है। सोई हों पाई। पाई का अर्थ है प्राप्त करदा हाँ। धन गुरु रामदास साहब पातशाह उस परमात्मा की सिफतो सलाह करते हुए ये बचन करते ने, हे वाहिगुरु पहला शब्द वरत्या तू करता। करता का अर्थ हुंदा क्रिएटर, पैदा करने वाला, रचना रचाउण वाला। तो वाहिगुरु परमेश्वर जी तू सब दा करता है, तू सब नू पैदा करने वाला है। नाल क्या सचियार। सचियार जिहड़ा शब्द है गुरमुखो जपजी साहब की बाणी अंदर भी 3 बार आउंदा सचियार शब्द। एक ते जदों असीं पहला ही पौड़ी पढ़ते हैं
ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ। ਸਚਿਆਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਚਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਚਿਆਰ ਵਰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਤੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂਡਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਥੀਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ, ਹਉ ਪਾਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਨੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਸਭ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ
और समझो बेनती बड़े ध्यान नाल। नाम दे अर्थ गुरबाणी विच गुरमुखो कदे भी एक जिहड़ा है एक अर्थ नहीं गुरबाणी विच आया। उस परमात्मा की जिहड़ी रब्बी रजा है वो भी उहदा नाम है। जिहड़ा ये हुक्म वरत रहा है ये सब कुछ उहदा नाम है। उस परमात्मा का निज़म बनाया वो नाम है। जो चंगा माड़ा हो रहा है ये भी उहदा नाम है। तो इस करके पातशाह कहते ने जिसनों किरपा करें ते नाम रतन पाया। इत्थे नाम रतन का अर्थ बनेगा कि परमात्मा जिन्हां दे उपर तू किरपा करदा है तेरे रब्बी निज़म नूं मन्नण दी स्वीकार करन दी जिहड़ी अकल है उसे नूं प्राप्त हुंदी है। नाम रतन उन्हां ने प्राप्त कीते जिन्हां ते किरपा तू करदा है। तेरा हुक्म मन्नण दी जिहड़ी बिरती है तेरे नाम की जिहड़ी बिरती है वो उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है। नहीं तो गुरमुखो देखो असीं कहने परमेश्वर का भाणा सी जी उहदा हुक्म सी जी। हुण कहण नूं ये कहण दीयां गल्लां बड़ियां सौखियां ने पर की इस गल नूं अंदर तो मन स्वीकार करदा है भी कोई गल नहीं रब दा भाणा सी। नहीं नहीं धरवासे जरूर दिंदा है बंदा मनुख नूं पर पातशाह कहंदे ये जिहड़ी सचमुच भाणा मन्नण दी दात अंदर तो बंदा प्रवान करदा है ये उन जिन्हां उपर तेरी किरपा हुंदी है। जिहड़े रब्बी गुण ने सानू परमात्मा वालों बख्शे हुए ने जिन्हों धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जनसूत। संतोख है दया है धर्म है सत है संतोख है। ये जिहड़े रब्बी गुण ने ये भी नाम है। ये भी किन्हां नूं मिलदा है जिन्हां उपर तू बख्श करदा है। बंदा लखां अरबां करोड़ापति होवे गुरमुखो कि वो संतोख कितों मिल जाएगा उन्होंने। जे कोई बंदा ये कहे मैनू ईमानदारी दे दो जी कितों ईमानदारी किसी दुकान तो पैसा बदले नहीं मिलती। संतोख दुनिया की किसी दुकान तो नहीं मिलता। मन में दया पैदा हो जानी तरस पैदा हो जाना किते ये किसी दुकान तो मिलता किसी कीमत बदले। ये रब के घर विचों मिलदियां ने दातां। बंदे दे अंदर सेवा भाव है जिहड़ा ये किसी दुकान तो थोड़ा मिलता भी मैं कोई पढ़ाई कर लवां जी ते मेरे अंदर सेवा की भावना पैदा हो जाए। ये दातां कित्थों मिलदियां ने ये ओदी किरपा विचों मिलदियां ने। जिन्ने रब्बी गुण ने ना साडे मनुख होण दी निशानी है। ये सारियां ही दातां निमरता कह लो सत संतोख दया धर्म ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये केवल ओदी किरपा दे विचों मिलदियां ने। इसे करके ये जिहड़ियां बख्शिशां ने कई बार ये बख्शिशां अमीर बंदे कोल नहीं हुंदियां गरीब दे कोले हुंदियां ने। ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ जी साडे प्रिंसीपल साहब वो दसदे ने सानू वो कहंदे मैं एक ऐसे रक्शे वाले नूं देखिया रोपड़ रहिंदे सन। वो कहंदे गुरुद्वारा साहब जाना एक रक्शे वाले ने आउणा उत्थे। हुण तुसीं देखो किड्डी वड्डी दात है। ते रक्शे वाले ने रोजाना दे 5 रुपये कदे कदे 10 रुपये गुरुद्वारे पर्ची कटाउणी। और किसी ने कहना भी तू कट्ठे 300 की कटा दिया कर भाई रोज कटाई जाना। वो कहता भी नहीं नहीं 300 की रोजाना हुंदा ही नहीं मेरे को। फिर रोजाना कदे 5 कदे 10। वो कहते भी जिहड़ा वो सी ना रक्शे वाला वो कहता देखो जी मैं हैगा रक्षा चलाउण वाला बंदा। कदे 100 बनता है कदे 50 बनते हैं कदे 200 बन जाता है। तो मैं शाम नूं आउणा ते जे 50 बन ते 5 रुपये दे जाना जे 100 बन जे ते 10 रुपये दे जाना। हुण ये जिहड़ी इन्नी ईमानदारी दसवंध देण दी इन्नी ईमानदारी है भी आपां तां नाल दी नाल ही देई जाने आ रब्बी बख्शिश है जिहड़ी इदां दीयां बख्शिशां गुरमुखो की किसी अमीर कोले होवेगी इदां दी गल नहीं ना। तो कई दातां ऐसियां हुंदियां ने। देखो जिवें एक थां जिक्र आउंदा है भाई लहणा जी दा। जदों भाई लहणा जी नूं पहली बार भाई युद्ध ने देखिया ना कहंदे दुकान ते बैठे हुए सी। दुकान दे उत्ते बैठे ते एक गरीब बंदा आया उन्हां दे कोले। गरीब बंदा आया 4-5 दिनों तो बाद और उन्होंने की देखिया भी थोड़ा जा उन्हें
आटा लिया, थोड़े चावल ले, थोड़ा तेल लिया। ते वो दुकानदार कहता भलिया पुरखा कई दिनों बाद आए हैं जी। वो कहता जी दिहाड़ी लगी नहीं, इस करके राशन लैण वास्ते नहीं आया। वो कहता चलो तू रोजाना का मेरा आउण जाण वाला पछाण वाला, ते तेनों वध पा दिंने। वो कहता नहीं नहीं वध नहीं पाउणा, जिन्ना मैं तेनों पैसे दे रहा उन्ना ही मैनू दे। रब दे घर का की पता कल नूं मौत आई तेरा देना लैके कित्थे लैके जावांगा मैं, उन्ना ही लै गए गुरमुखो। और जो घर में जाके देखिया कहते इन्ना की आटा खरीदिया होया सी कि केवल 2 रोटियां बनिया, एक आपने थाली च रख लई, एक घर वाली ने थाली च रख लई। ते भाई लहणा जी ने जेडे पिछे पिछे तुर पे भी इन्ना संतोखी कौन है बंदा। जदों जाके देखा खड़ के दरवाजे दे विच अजे दोने जी रोटी खाण की तैयारी करते, इन्हूं भिखारी आ गया। कोई भिखारी आ गया, वो कहन लगा जी मैं बहुत भुखा, मैनू दे दिओ। ते कहंदे उस सिख ने एक रोटी चुक के उस भिखारी नूं दित्ती ते अद्धी अद्धी आप दोनों जियां ने खा ली। जो ये गल भाई लहणा जी ने देखी, अंदर गए ते हथ बन के कहन लगे पुरखा इन्ना संतोख भी 2 ही रोटियां होण थाली च, ते दरवाजे ते मंगता आ जाए ते एक चक उहनूं दे दी ते अद्धी अद्धी खा के सौ जाइए, इन्ना संतोख कित्थों आया जी। वो कहंदा जी बाबे दी बाणी चों। वो भाई जोध जी सन, बाबे दी बाणी चों संतोख मिलिया मैनू इन्ना। ये हुण गुरमुखो इन्ना संतोख बंदे नूं जां इन्ना वंड के खाण दी बिरती ये नहीं है। आपां कहने भी वंड के खाण लई बोल भरे होण, वंड के खाण लई खजाने भरे होण, बंदा तां ही वंड के खाएगा। नहीं, जे वंड के खाण दी बिरती होवी 2 रोटियां होण उहदे विचों भी वंड के खाधा जा सकदा है। जदों बाबा नानक साहिब ना सिद्धा ना गोष्ठी करते, एक तिलगंजी गुरुद्वारा साहिब बनया होया, तिलगंजी गुरुद्वारा साहिब का नाम है। सिद्ध बाबे नानक नूं कहंदे बाबा वंड के छकण दीयां बड़ियां गल्लां करदा है, जे वंडण वाली चीज ही ना होवे बाबा कहंदे ऐसा हो ही नहीं सकदा। सिद्ध गुरु नानक साहिब दे कोल एक तिल लैके आए, एक तिल, ते कहंदे बाबा जे बंदे कोल एक तिल ही होवे ते किवें खा लेगा वंड के। बाबा साहब ने गुरु नानक साहब ने तिल नूं फड़िया जी, एक नूं जोगियां दा कूंडा फड़िया, एक तिल पाया, कहने लगे मतलब पानी लैके आ। पानी लैके आया, एक तिल नूं रगड़िया पानी दे विच ते ओ पानी सारा एक एक 2 घुट्टां सब नूं छका दित्तियां। गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे सिद्धों जे वंड के छकण दी नीत होवे ना ते एक तिल भी वंडिया जा सकदा है। गल बोल लगण दी नहीं है भी बहुता होवेगा, गल अंदर दी नीत दी है। जे नीत सच्ची होवे तां एक तिल भी वंड के छकिया जा सकदा है। हुण जिहड़े आ गुण ने गुरमुखो, आ गुण तां किसे दुकान तो नहीं मिलदे। संतोख दा गुण, वंड के छकण दा गुण, ये रब्बी गुण हुंदे ने, ये गुरु दे दर तो मिलदे ने, परमात्मा दी किरपा तो मिलदे ने ऐसे गुण तां। तो पातशाह कहंदे जिसनों किरपा करें जिन्ना उपर तू किरपा करदा है, तिन नाम रतन पाया। ये रब्बी गुणा दे नाम दा रतन उन्हां नूं ही प्राप्त हुंदा है। गुरमुख लादा मन मुख गवाया। सतगुरु पातशाह कहंदे ने भाई ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ कह लो पूरे का पूरा जीवन भी एक रतन ही है ना, ये पूरी पूरी जिंदगी भी एक रतन ही है। ते कहन लगे मनमुख बंदा कौन है, जिन्हें जिंदगी रूपी रतन नूं गवा लिया, रब्बी गुणां दे रतन नूं गवा लिया, गुरु वालों मिले हुए नाम रतन नूं गवा लिया। वो मनमुख है जिन्हां ने जिंदगी दे नाम रतन विचों, गुरु दे ज्ञान रूपी रतन विचों लाहा खट लिया। वो गुरमुख जन हैं। बस आही तरीका है। सतगुरु पातशाह कहंदे गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। ये सतगुरु पातशाह आप ही तू अपने निज़म दे अधीन मन मुखा नूं विछोड़ दिंदा है ते अपने हुक्म दे अधीन निज़म दे अधीन गुरमुखा नूं अपने नाल
मिला लैंदा है। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तू एक दरिया वर्गा है। जिवें दरिया विच बड़े जीव हुंदे ने गुरमुखो, दरिया पानी दे विच ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। तुद बिन दूजा कोई ना है, तेरे तो बिना और दूजा कोई भी नहीं है। जी जंत सब तेरा खेल, ये जितने संसार दे जीव जंतु हन, इन्हां दी रचना एक जगत दा तमाशा है, जगत दी खेड है। इस खेड नूं चलाउण वाला भी तू है, इस खेड नूं खत्म करन वाला भी तू है। जिवें एक तां गुरु नानक साहिब पातशाह, गुरु अर्जन साहिब पातशाह बचन करदे ने, सतगुरु पातशाह कहते जल ते उठै अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा। बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते खेड है संसार एक, खेड शुरू होने तो पहला भी वो परमात्मा आप खड़ाउण वाला है। जदों खेड ने खत्म होना ते रह जाना अखीर उत्ते केवल खड़ाउण वाला। जे बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई, स्वांग उतार थम्यो पसारा, तब एक एक अंकारा। जलते उठा अनक तरंगा, किन्नियां लहरां उठदियां ने समुंदर दे पानी विचों, पर कुछ देर लहरां उठदियां ने, समुंदर शांत हो जाता है, रह जाता है शांत समुंदर। जिहड़ा लहरां उठण तो पहलां भी सी उही रह जाता है। इसे तरह दे नाल कनक भूखन कीने बहुरंगा, सोने दे ढेलियां तो किन्ने गहने बना लईए, अखीर जो गहणियां नूं ढालिया जाता है, फिर रह जाता केवल सोने दा सोना। इसे तरह दे नाल पातशाह कहंदे बीज बीज देखियो बहु प्रकारा। बीज बीजिया जाता है, जिवें अंब दा बीज एक गिटक है अंब दी, उहदे विचों एक बीज बीजिया, एक पौधा तैयार होया, पौधा एक वड्डा बृछ बनिया, बृछ उहदे विच फल लगे अंब दे, ते जदों अंब नूं तोड़ के देखिया, उहदे विचों रस खादा, ते अखीर ते रह गई उही गिटक जिहड़ी कई साल पहलां धरती विच बीजी होई सी। हुण अंब दे दरख्त की शुरुआत भी एक बीज तो है, ते संपूर्णता भी उहदी गुरमुखो बीज दे उपर ही है। इसे तरह इस संसार की रचना जिहड़ी है, उहदी शुरुआत भी एक ओंकार तो है, ते जदों सारा खेड खत्म हो जानी है, रह जाना केवल एक ओंकार परमात्मा, अखीर भी परमात्मा। तो ये विचकार खेड है गुरमुखो एक। सतगुरु पातशाह कहते जी जंत सब तेरा खेल, ये जितने संसार के जीव जंतु ने, इन्हां दा जमना, इन्हां दा मरना, इन्हां दा पैदा होना, इन्हां दा खत्म होना, ये सब तेरी खेड है। विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, ये तेरे बनाए निजम के अनुसार जीव तैथों विछोड़े च पै जाते हैं। ते हे परमात्मा तेरे बनाए संजोगां, संजोग के मेल अनुसार फिर तेरे नाल दोबारा आके मिल जाते हैं। जीवां दा विछड़ना, जीवां दा तेरे नाल दोबारा आके मिल जाना, ये तेरे निजम दे विच है। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जीओ, जिसनों तू जाना है, जिसनों तू सोझी दिंदा है, जिसनों तू अकल दिंदा है, सोई जन जाने, ओही सेवक तैनू जान सकदा है। हर गुण सदही आख वखाणै, ओही मनुख जिसनों तू सोझी बख्शदा है, हर गुण सदही आख वखाणै, सदा आप हरि दे गुणां नू ओही बयान करदा है। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, जिन्हां ने हे हरि तैनू सेविया है, तैनू सिमरिया है, तिन सुख पाया, उन्होंने ही आत्मक सुख नू प्राप्त किया है। शरीरक सुख गुरमुखो दुख, एक गल समझो बड़े ध्यान नाल, शरीरक दुख सुख ने जिहड़े वो कुदरत का एक निज़म है।
पर ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਵਿਆਪੈ ਜਾਕੋ ਉਠ ਤੁਹਾਰੀ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਰਜਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇ ਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਤਿੰਨ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸੁਖੈਨ ਹੀ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੇਰਿਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਜ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਬਿਨ, ਤੁਧ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਤੁਧ ਬਿਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਧਕੀ ਰਸਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਿਆ
कि जो बोलदा है परमेश्वर आप ही बोलदा है। इस नूं कहंदे ने प्रगट हो जाना। सतगुरु पातशाह कहंदे ਜਿਹੜੇ गुरु ਦੀ शरण विच आके नाम रतन ਦੀ संभाल कर लैंदे ने, परमेश्वर उन्हां दी जिंदगी विचों उन्हां दे बचनां दे राहीं प्रगट हुंदा है। सतगुरु पातशाह किरपा करन। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਿਆਣ ਜੀਤੀ।